we are कंटिन्यू एक्सरसाइज नंबर 1.3। हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था, आज फिर से देखिए अगेन, जितना भी हो सकता है एक्सरसाइज नंबर 1.3 question is write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has। 36/100 कल मैंने किया था, that is 3.6 terminating decimal expansion। सेकेंड इज 1/11 1/11 आपसे डिवाइड करेंगे 0.0000 11 9 जा 99 1 0 0 0 9 99 रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल 0.090909 नॉन टर्मिनेटिंग मैंने कल एक्सप्लेन किया था, जिसका रिमाइंडर 0 हो जाए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसका रिमाइंडर 0 ना हो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर वो इक्वली रिपीट करता है आप यू कैन से दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। तो सिमिलरली 4 1/8 8 4 जा 32 और 133 डिवाइड करें। 33 को 1 से डिवाइड करके 1.10 लाए, 8 4 जा 32 1.0182 0 8 2 जा 16 4 0 8 5 जा 4.125 terminating decimal। Student, you can see that the remainder of this equal to 0. So therefore, this type of decimal expansion is called terminating decimal expansion because its remainder is 0. Similarly, a remaining part of question number 1 you can do. It's your homework। ये आपका होमवर्क है। जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप ट्राई करें, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं सॉल्व करके आपको दे दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन इज if you have that 1/7 equal to 0.142857 bar, that means it is repeating, that means it is non-terminating recurring decimal expansion। So you have to find 4/7 4/7 means 4 into 0.142857 multiply 4 7 जा 28 4 5 जा 20 and 2 22 carry 2 4 2 जा 4 8 जा 32 and 32 34 carry 3 4 2 जा 8 3 11 carry 1 4 4 जा 16 1 17 carry 1 4 1 जा 4 और 1 5 0 point this 4/7। Similarly 5/7 5 into 0.142857 again multiply 5 7 जा 35 carry 3 5 5 जा 25 और 3 28 carry 2 5 8 जा 40 2 42 carry 4 5 2 जा 10 4 14 carry 1 5 4 जा 21 carry 2 5 1 जा 5 2 7 0।
this is. Similarly, you can easily find 6 by 7 multiply. आप 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और सब पर इस तरह आप क्वेश्चन नंबर सेट. Okay? If you have any problem, then you can call me or you can message me. I will try again and again. Next question number 3. Express is following in the form of P upon Q. Let x is equal to 0.6 bar, that is non-terminating recurring decimal. So you can write it 0.66666 infinite. Now equation number 1. One digit is terminating, then you have to multiply 10 from both the sides. If two digit is repeating, then you have to multiply 100 from both the sides. 3 digit, then 1000 from both the sides. In this question, only one digit is repeating, so you have to multiply 10 from both the sides. Equation 1 multiply 10. Then 10x, you will get 10x 6.666666 infinite. नंबर ऑफ इनफाइनाइट से अगर आप कोई भी नंबर निकालें, ऐड करें, तो उसके टोटल नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं होता. सो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 आप सब्सट्रैक्ट करेंगे. 10x निकलेगा 9x. लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस के इक्वल हैं. सब्सट्रैक्ट करने पर ये 0 होंगे एंड 6 minus 0 equal to 6. Now x equal to 6 by 9, 3 2 जा 3 3 जा 2 by 3. ये आता. Now question number the remaining part, question number 2nd and 3rd part of this question. ये आपका होमवर्क है. इसी तरह आप इसको ट्राई करेंगे. ओके? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगेन मैं बार बार ही कहता हूँ, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं कर पाते हो, आप मुझे मैसेज कर दो, बस मैं सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा. क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्रेस 0.9999 in the form of P upon Q. Are you surprised that your answer with your question is only you have to 0.99999 infinite. You have to change it in the form of P upon Q, just like जैसे मैंने अभी भी क्वेश्चन किया है. तो let x equal to this. आप वन डिजिट रिपीटेशन है, 10 का मल्टीप्लाई करें तो 10x इक्वल टू 9.999999 infinite. Equation number 2. Equation number 2 subtracted equation number 1. You will get 10x minus x, that is 9x, and equal to 9, and that is x equal to 9 upon 9, that is 1. This repetition is about 1. सरप्राइज ये है, ये कभी 1 हो नहीं सकता, लेकिन रिजल्ट आपका देखिए 1, क्योंकि अबाउट टू कैलकुलेशन में जो बहुत माइनर डिफरेंस होता है, दैट इज निगलेक्ट कर दिया जाता है और अप्रॉक्स वैल्यू अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाती है. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट कैन यू मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी. आप 1 को 17 से डिवाइड करेंगे, 1 को 17 से डिवाइड करेंगे और ट्राई करेंगे कि ये कितनी बार जाके फिर से रिपीट होता है. तो आपको एक लंबा सा कैलकुलेशन मिलेगा. देखिए मैं डिवाइड कर रहा हूं. वन डिवाइडेड बाई 17.000 5 जा 85 5 15 0 8 जा 8 7 जा 56
और दिस, तो 4 1 0 अगेन 136 4 0 2 34 6 60 3 टाइम ले जाइए 51 9 5 टाइम 85 फिर 5 यहाँ फिर 0 50 2 टाइम ले जाइए 34 एंड 6 16 160 9 टाइम ले जाइए 9 7 63 और 9 1 9 6 15 then it is 7 and cancel out 70 4 टाइम ले जाइए 68 तो 2 only again 20 1 टाइम 17 फिर 3 13 फिर 1 टाइम फिर 17 3 and 1 13 0 and 7 time 7 time 7 7 49 7 1 7 4 11 that is 1 2 1 11 0 and 6 time 102 फिर 8 फिर 80 4 टाइम 2 12 120 120 9 टाइम 9 7 10 3 7 11 5 11 से 5 निकलेगा 6 no this is wrong 9 10 7 1 0 0 0 अब रिपीट करेगा। ये देखिए क्वेश्चन अब रिपीट करेगा। 100 से मैं स्टार्ट किया था और फिर मैं कहाँ पहुंच गया हूँ 100 पे पहुंच गया हूँ। तो अब ये रिपीट करेगा। कितनी डिजिट हुई आप देखिए, ये डिजिट है आपका। इतने डिजिट रिपीटेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 डिजिट। आप डिवीजन करते चले जाइए। जब आपको ये नंबर फिर से मिल जाए तो वहीं रुक जाइएगा, क्योंकि उसके बाद ये फिर से रिपीट करेगा। अगेन रिपीटिंग द नंबर। तो आपसे क्वेश्चन किया गया है इसमें व्हाट कैन यू मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट बी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो आपने डिवाइड किया तो आपको मिला। तो इस तरह आप स्वयं करिए, इसको डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके।
Okay. Now question number 6. Look at several example of rational numbers in the form of p upon q where pq are integers with no common factor other than 1. p upon q में one thing is necessary that common factor between numerator and denominator be maximum 1 से ज्यादा 1 के अलावा नहीं होना चाहिए. Having terminating decimal representation, can you guess what property q must satisfy? यानी जो जिसमें ऐसा होता है कि 1 के अलावा नहीं होता तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. 1/, अभी मैंने देखा कि 1/, इसमें अभी क्वेश्चन में 1/17 में भी 1 ही कॉमन है, बट इट इज नॉट टर्मिनेटिंग. तो ऐसा नहीं है. आप लिखेंगे कि माई गेस इज ओनली, इट इज नॉट नेसेसरी टू जस्टिफाई दिस कंडीशन. तो क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोग ट्राई करें कंप्लीट करने का. क्वेश्चन नंबर 7 से कल मैं फिर कंटिन्यू करूंगा. एंड आई होप यू विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम विथ इंटरेस्ट. आप वीडियो को ओपन करें टाइम से, जब भी आपका क्लास टाइम है उसको देखें. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, मैसेज मैं करता हूं. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करें. I will try to solve your problem, but अगर आपने ओपन ही नहीं किया then you can't do anything. आप कुछ नहीं कर सकते. And that's all for today. I will continue next problem in the tomorrow. Thank you.